Hello friends, good morning, good noon and good evening to each and all. I welcome all the students from my bottom of heart. Dear friends, in our first lecture, we discussed about the entire syllabus. So again here in this video we are going to repeat the entire syllabus. So those who might have not attend the first lecture or those who could not attend the first lecture, they can get an idea about and regarding the entire syllabus of our paper General English. Dear friends, you know very well that each and every paper is divided into 4 units. So the same case is with our paper General English. So in unit number 1, we have a text. The title of the text is Malgudi Days, written by R.K. Narayan. Dear friend, this is the picture of the book. This is the cover page of the book, R.K. Narayan's Malgudi Days. This book contains more than 50 short stories, but out of those 50 short stories, we have supposed to learn only enlisted 10 short stories, which I have enlisted on the screen. The first, The Doctor's World. Second one is The Blind Dog. Third one is Iswaran. Fourth one is Father's Help. Fifth one is 45 a month. Sixth one is Out of Business. Seventh one is Attila. Eighth one is The Shadow. Ninth one is Leela's Friend, and the last but not the least, Selvi. So dear friends, these are the 10 short stories which have been prescribed by Gujarat University for our syllabus, unit number 1. From these short stories, there will be 3 kinds of questions. Number 1, brief questions. It means that you have supposed to answer the questions in 3 or 4 lines. Then we have short notes. Then we have MCQ, multiple choice questions. And unit number 1 will be asked in 14 marks in university examination as per the regular paper style, as per regular paper pattern. If there will be any change because of this corona, I will let you know what kind of changes will take place in the entire syllabus. But as of now, we have such kind of paper style which is prescribed by Gujarat University. Unit number 1 deals with text Malgudi Days, a collection of short stories. We have supposed to learn only enlisted 10 short stories. Unit number 2, the second unit deals with again the text Arms and the Man, written by G.B. Shaw. The full name of G.B. Shaw is George Bernard Shaw. Arms and the Man is a play, is a drama which is written in 3 acts, and it is an anti-romantic comedy. Dear friends, this is not the collection of short stories, but this is the complete drama. This is the complete anti-romantic drama rather, which is written in 3 acts. So we will discuss the entire book in the coming videos, in the coming lectures. So there is no need to purchase book for unit number 1 and book for unit number 2, because I am going to send you the PDF file of both the books. So you can download the book, and if you want you can get the print of that book from your site. Unit number 3, the third unit deals with grammar portion. In this unit we are supposed to learn 4 units: articles, prepositions, modal auxiliaries and tenses. However, there won't be any questions, essay kind of questions in your internal as well as in your university examination. This unit will be asked in the form of fill in the blanks. So there will be blanks on the topic articles, preposition, modal auxiliaries and
tenses. So we will again discuss this grammar topic in the coming videos. Unit number 4, the last but not the least. The title of unit number 4 is speaking skills. Again, in this unit, we have now supposed to purchase any textbook, because here we have supposed to make the practice of speaking in English. There are 4 topics: pronunciation, syllable division, rhyming words and vocabulary from the text. However, syllable division, the list of the words is given by Gujarat University. So again I will send the PDF file of syllable division, and the vocabulary from the text. Again, the vocabulary from the text, the list of vocabularies is also given by Gujarat University. So again I will send the PDF file of vocabularies also. So in short, you are not supposed to purchase any textbook from the market. If you want to purchase, you can. By the way, I am going to provide you all kinds of materials. So this is what the entire picture of your general English. Unit number 1 deals with the text Malgudi days. Unit number 2 deals with the text arms and the man. Unit number 3 grammar, and unit number 4 speaking skills. Dear friends, before going to start our first unit, I would like to tell something. I would like to discuss with you people that what do you mean by the word literature. See, in the first lecture we have already discussed that English is a very special language. English language has its own characteristics. However, each and every language has its own flow. Each and every word cannot be translated as it is into the other language, because each and every language has its own grammar rules. Each and every language has its own pattern of structure. So before going to discuss all these things, I would like to discuss with you people that what do you mean by the word literature. See, literature का अगर हम गुजराती या तो हिंदी करते हैं तो उसका मीनिंग होता है साहित्य. I suppose that साहित्य means what? You might have heard this word when you were in standard 10th. जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं स्टैंडर्ड 10th के अंदर, जब फर्स्ट पेपर हमारा होगा, उस वक्त हमारे जो सुपरवाइज़र होंगे उन्होंने कहा होगा તમારી પાસે કોઈપણ પ્રકારનું સાહિત્ય, કાપલી કે પુસ્તક લાવ્યા હોય તો બારે મૂકી દો. સો ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ what is literature, what is sahitya? See, here in that context I am talking about examination. When a supervisor says, if you have any literature, please put aside outside the examination hall. So see, the word literature means what? It is said that literature means anything that is written is called literature. मतलब कुछ भी लिखा हो तो उसे लिटरेचर कहते हैं. अब सवाल ये उठता है कि अगर कुछ भी लिखा हो तो अगर उसे हम लिटरेचर बोलेंगे, then newspaper will be literature. Advertisement again comes under the title of literature. Invitation cards, letters, resumes, all these kind of written material fall into the category of literature. So are we going to learn or study such kind of literature? No, my dear friends, I am not talking about that kind of literature, but I am talking about literature. Literature means which gives us something, which tells us something, which teaches us something. So since our nursery, our KG, first standard, we have been learning different kind of literature, different forms of literature rather. Poetry, short stories, biographies, dramas, essays, biography, autobiography and all. So before going to discuss all these things, I would like to tell something. See, basically broadly there are two types of literature. First one is literature of knowledge and second one is literature of power. Now see, what do you mean by the word literature of knowledge? Generally, as per the title itself suggests, knowledge means what? Literature which gives us knowledge, literature which provides knowledge. So knowledge means what? Literature
like newspaper, magazines, all this kind of literature contains knowledge. It provides knowledge, it gives us knowledge. So we are not going to learn such kind of literature of knowledge, but yes, we are going to learn about the literature of power. Literature of power means such kind of literature has power. ये literature के अंदर कुछ power होती है. Here the word power means what? The power का मतलब होता है ऐसा literature जो हमें हंसा दे, ऐसा literature जो हमें रुला दे, ऐसा literature जो हमें सेंटी बना दे, इमोशनल बना दे. उस प्रकार के literature को हम literature of power कहते हैं. विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसा कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर कैन वीप हिज ऑडियंस विथ वन आई एंड कैन लाफ विथ अनदर आई. मतलब दिस इज द पावर ऑफ लिटरेचर कि जो हमें हंसा भी सकता है, जो हमें रुला भी सकता है, जो हमें सेंटिमेंटल भी बना सकता है, इमोशनल भी बना सकता है. सो डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम आवर फर्स्ट स्टैंडर्ड वी हैव बीन लर्निंग लिटरेचर ऑफ पावर. लेकिन अभी तक किसी ने ये बताया नहीं कि हम जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हैं, वो लिटरेचर कौन सा है, लिटरेचर ऑफ पावर है कि नहीं है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज है कि नहीं है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज लिटरेचर ऑफ पावर. Here we are going to discuss what is literature of power means what. See, हमें कभी हमें ऐसे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है, जहन में ऐसा ख्याल आता है कि हमें लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए. हालांकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लिटरेचर कहीं कभी काम नहीं आएगा. सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बीबी, आपको भी ये जहन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि व्हाई शुड वी लर्न लिटरेचर. इसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उपयोगिता क्या है. बचपन से हम पोएट्री करते आए हैं, बचपन से हम कहानियाँ सुनते आए हैं और आगे भी जाकर के कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं. तो हालांकि मार्केट के अंदर जब आप जॉब लेने जाओगे तो नोबडी विल आस्क यू कि विच पोएम डू यू नो, आपको कौन सी पोएम आती है, आपको कौन सी कहानी आती है. यस, तो फिर क्वेश्चन ये होता है, देन व्हाई शुड वी लर्न लिटरेचर. तो लिटरेचर पढ़ना क्यों चाहिए. ऐसा ही एक सवाल संस्कृत के महान राइटर जिसका नाम था कवि मम्मट, उनको ये क्वेश्चन पूछा गया. When the great Sanskrit poet Mammat was asked the same question, why do you create literature? और दूसरा क्वेश्चन उनको पूछा गया कि आप राइटर लोग, मतलब कि पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट, ये लोग जो लिटरेचर के अंदर जो दुनिया दिखाते हैं, वो दुनिया और जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, मतलब कि द वर्ल्ड विच इज़ क्रिएटेड बाय द गॉड, दोनों में से किसकी दुनिया श्रेष्ठ है. ऐसा क्वेश्चन एक बार कवि मम्मट को पूछा गया. सो इन रिस्पॉन्स टू दीज टू क्वेश्चंस, कवि मम्मट रॉट द एंटायर बुक. द टाइटल ऑफ द बुक इज काव्य प्रकाश. दोस्तों, कवि मम्मट को जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो दुनिया बताते हो वो और जिस दुनिया में के अंदर हम रह रहे हैं, दोनों में से श्रेष्ठ दुनिया किसकी है, तो कवि मम्मट ने बताया, जवाब देते हुए पूरी एक पुस्तक लिख दी, पूरी एक बुक लिखी जिसका नाम था काव्य प्रकाश. इट्स अ वेरी लेंथी एंड बल्की बुक. इन द बिगिनिंग चैप्टर, द फर्स्ट श्लोक के अंदर उसने बताया कि भाई किसकी दुनिया श्रेष्ठ है. तो बोला कि हमारी दुनिया, मतलब कि द वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय द ऑथर, द वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय द पोएट, द वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय द प्ले राइट इज द ग्रेटर वर्ल्ड दैन द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द गॉड. उनको पूछा गया व्हाई इट इज लाइक दिस, ऐसा क्यों. In reply to this question, he wrote this book, that is काव्य प्रकाश. ये जवाब देते हुए उन्होंने फर्स्ट श्लोक लिखा, नियतिकृत नियम रहिता आह्लादक मई अनन्य पर तंत्रताम नवरस रुचिराम माँ ददती भारतेर कवेर जयती. मतलब क्या, उन्होंने बताया, डिफरेंस बताया दोनों के बीच में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय द गॉड एंड द वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय द पोएट. उन्होंने बताते हुए कहा कि नियतिकृत, नियम रहिता, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ल्ड्स इज नियतिकृत. इट मीन्स दैट द वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय द गॉड इज अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, whereas the world which is created by the poet is without rules and regulation. मतलब कि कवि की दुनिया के अंदर कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस नहीं है. हिंदी में आपको एग्जांपल समझाता हूँ. भगवान की दुनिया के अंदर कुछ नियति है. नियति का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है. जैसे कि सुबह होती है, सूर्योदय होता है, शाम होती है, फिर रात होती है, सूर्यास्त हो जाता है, फिर दिन निकलता है, जन्म के बाद मृत्यु आती है.
उस प्रकार कुदरत की दुनिया के अंदर सब कुछ तय होता है, सब कुछ नियम से चलता है, सब कुछ ईश्वर के अधीन होता है। लेकिन कवि की दुनिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। कवि की दुनिया के अंदर क्या है, नियम रहिता है। नियम रहिता का मतलब होता है विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब कि कवि किसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, वो अपने आप ही खुद ही रूल बनाता है, क्योंकि दुनिया उसकी है। हम पिक्चर के अंदर देखते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फिल्म एंड सीरियल्स, ये सारी चीज़ें डिजिटल लिटरेचर के अंदर आती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कवि जो होते हैं, मतलब कि जो फिल्म लिखते हैं, वो भी राइटर है, तो उनकी भी एक दुनिया होती है। हमें मालूम होता है कि पिक्चर के अंदर जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो कुछ भी बताया जाता है, हालांकि उसमें से 1% भी सच नहीं होता, लेकिन फिर भी हम महंगी महंगी टिकटें खरीद करके सिनेमा गुरु के अंदर फिल्म देखने जाते हैं। वाई? हमें पता होता है कि साउथ इंडियन की फिल्म के अंदर हीरो जो एक्शन करता है, वो एक्शन मालूम है हमें कि वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को फाइटिंग के अंदर इतना मार दे तो वो जो हीरो होता है, वो मतलब कि जो विलन होता है, वो गाड़ी से टकराता है और गाड़ी 4-5-6 फुट दूर चली जाती है। कभी कभी तो आसमान के अंदर उड़ने लगती है गाड़ियाँ। तो ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, हम मान लेते हैं। तो कवि ने बताया कि दिस इज द डिफरेंस, नियतिकृत नियम रहिता, द फर्स्ट डिफरेंस। उसके बाद उन्होंने बताया कि नियतिकृत नियम रहिता आह्लादक मई अनन्य परतंत्रता, मतलब कि हमारी जो दुनिया है वो आह्लादक है। आह्लादक मतलब वंडरफुल, मतलब अ पर्सन लाइक्स टू लिव इन सच काइंड ऑफ वर्ल्ड। मतलब हमें फिल्म देखने हम जाते हैं तो वो जो दुनिया होती है, उस दुनिया के अंदर हम जब मतलब कि चले जाते हैं, हम बाहर की दुनिया भूल जाते हैं और उस दुनिया को हम एंजॉय करने लगते हैं 2.5 घंटे तक, 3 घंटे तक। तो ये कवि की दुनिया है जिसके अंदर क्या होता है, आह्लादक, मतलब कि बहुत ही आनंद आता है। कवि की दुनिया के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। कवि जो कहता है वो सोच लेते हैं, मान लेते हैं। भगवान की दुनिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर पूनम होगी तो चांद जो है वो पूर्णतः प्रकाशित होगा, अगर अमावस्या होगी तो अमावस्या के अंदर चांद कभी नहीं होता है। लेकिन अगर कवि चाहे, अगर कवि की कोई माशूका, अगर उनकी प्रेमिका, मतलब कि रात, अंधेरी रात हो, अमावस्या की रात हो, और वो राइटर, वो पोएट उसकी माशूका के गलियों के अंदर जा रहा हो, और अभी कभी कभी अगर उसको उनकी माशूका कहीं खिड़की से, कभी मतलब कि झरोखे से अगर देख लेता है, या तो ऊपर छत पे टहलते हुए देख लेता है, और उनके मुंह में से ये अल्फाज बहने लगते हैं कि दमिताम मुखम चंद्रमिवम शोभदे, मतलब कि आपका मुख जो है चंद्र की तरह सुशोभित हो रहा है, तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये कवि की दुनिया होती है। कवि जो कहता है वो हम मान लेते हैं। तो इसलिए भी वो कविता या तो कवि की जो दुनिया है वो श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया द थर्ड डिफरेंस इज नवरस रुचिराम माँ दधती, अर्थात इन द वर्ल्ड ऑफ पोएट, पोएट की वर्ल्ड के अंदर 9 प्रकार के अलग अलग रस है। यहाँ पे रस का मतलब वो जूस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो चीकू का जूस, गन्ने का जूस, वो नहीं। लेकिन यहाँ पे रस का मतलब होता है हास्य रस, वीर रस, करुण रस। मतलब देखा जाए तो लिटरेचर के अंदर देयर आर टोटल 9 रसास, 9 प्रकार के अलग अलग रस है। अगर हम कुदरत की दुनिया की बात करें, द वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय द गॉड, उस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास वी हैव ओनली 6 रस। उसके अंदर 6 प्रकार के रस है। या तो वो किसी भी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं तो वो या तो हमें तीखा लगता है, या हमें स्वीट लगता है, या हमें खट्टा लगता है। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो साहित्य के अंदर सिर्फ कुदरत की दुनिया के अंदर 9 रस है, और भगवान की दुनिया के अंदर ओनली 6 रस है। अगर इस प्रकार भी देखा जाए फिर भी कवि की दुनिया जो है श्रेष्ठ है। इसलिए भारती कवेर जयती, इसलिए कवि की जय हो रही है। मतलब दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द फर्स्ट श्लोक विच इज गिवन बाय, विच इज एक्सप्लेन बाय द ग्रेट संस्कृत पोएट मम्मट। तो ये बात उन्होंने बताई। फिर उसको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि चलो मान लिया आपकी जो मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स है, मान लिया कि चलो आपकी जो दुनिया है वो श्रेष्ठ है, तो दूसरा क्वेश्चन उसको पूछा गया कि व्हाई डू यू क्रिएट सच काइंड ऑफ लिटरेचर, तो आप ये लिटरेचर लिखते क्यों हो? व्हाट आर द पर्पसेस बिहाइंड क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ लिटरेचर। दोस्तों संस्कृत में ऐसी कहावत है, विना प्रयोजनेन मूर्खम अपि न विचरति, मतलब कि विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, इवन अ फूल पर्सन डजंट मूव, वो भी काम नहीं करता है। तो ये राइटर जो होते हैं वो लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं? तो ये क्वेश्चन का भी आंसर देते हुए कवि मम्मट लिखते हैं आगे,
काव्यम यशसे अर्थ कुरुते व्यवहार विदे श्वेतर्क्षयदे सद्य पर निवृत्त कांता समित तयो उपदेश युजे. See, this is the second कारिका, this is the second श्लोक from the same book काव्य प्रकाश. बताते हैं कि भाई हम क्यों लिख रहे हैं, what are the purposes behind writing or creating such kind of literature. So the first objective of any poet behind creating a literature is kavyam yashase. The word kavyam means literature, yashase means to earn name and fame. कोई राइटर लिखता है बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न देयर नेम, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी अ फेमस, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी अ पॉपुलर इन द वर्ल्ड. दुनिया के अंदर वो पॉपुलर होना चाहते हैं, यश कमाना चाहते हैं, इसलिए वो लिखते हैं. तो फर्स्ट पर्पस हो गया टू अर्न नेम एंड फेम. सेकंड वन इज अर्थ कृते. अर्थ का मतलब संस्कृत के अंदर अर्थ का मतलब होता है मनी, पैसा कमाना. तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी. कोई लिखता है बिकॉज दे वांट मनी, वो पैसे कमाने के लिए लिखते हैं. जैसे कि हमारी जो किताबें होती है सिलेबस की, वो भी कोई लिखते हैं तो वो नाम के लिए नहीं लिखते हैं, लेकिन वो दाम के लिए लिखते हैं, पैसों के लिए लिखते हैं. राइटर भी जो स्क्रिप्ट लिखता है फिल्म की या तो सीरियल की, वो भी अपने नाम के लिए नहीं लिखते हैं, वो भी दाम के लिए लिखते हैं, पैसे के लिए लिखते हैं. तो कोई लिटरेचर पैसों के लिए भी लिखाया जाता है. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज व्यवहार विधेय. सी द वर्ड व्यवहार मीन्स व्हाट, हाउ टू डील इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर किसी के साथ कैसे बिहेव किया जाए, तो वो हमें अगर कोई सिखाता है तो वो लिटरेचर सिखाता है. उसके बाद में है श्वेतर्क्षयदे. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड है शिव. शिव का मतलब यहाँ पे लॉर्ड शिव की बात नहीं हो रही. यहाँ पे शिव का मतलब होता है मंगलकारी, ओमनिशियस, मतलब कि जो सर्वव्यापी है, जो बहुत ही प्रेशियस है. तो जिंदगी के अंदर हमें सुख और दुख दोनों प्रकार की परिस्थितियां आती है, और सुख में कैसे रहना चाहिए और दुख में कैसे हमें दिन काटने चाहिए, अगर हमें सिखाता है तो वो हमें लिटरेचर सिखाता है. जैसे कि हमारे रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये जो रिलीजियस बुक्स लिखी गई है तो वो भी किसी ने लिखी हुई है. तो वो क्यों लिखी गई है, क्योंकि श्वेतर्क्षयदे मतलब कि कभी हम दुखी हो जाए तो उसमें से हमें कैसे बाहर आना है, वो हमें लिटरेचर समझ आता है. लिटरेचर हमें रास्ता दिखाता है. सो लिटरेचर शोज द वे, लिटरेचर टीचेस अस हाउ टू लिव. फॉर एग्जाम्पल, कवि कबीर का नाम आपने सुना होगा, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हो गए. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ही वॉज इलिटरेट, बिल्कुल ही अंगूठा छापते, कुछ भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई थी, लेकिन फिर भी आप देखो कि कबीर साहब की जो कबीर वाणी है वो कितनी मशहूर हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर. उसमें से कितनी सीखें हमें मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से मैं अगर आपको बताऊं कि वो ह्यूमन को इतना नज़दीक से गौर करते हैं और वो ह्यूमन बीइंग को, पूरे वर्ल्ड को एक टीचिंग देते हैं. कबीरा बैठा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना हो किसी से दोस्ती, ना हो किसी से बैर. सो फ्रॉम दिस कपलेट, फ्रॉम दिस टू लाइन्स वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स. हालांकि वो अंगूठा छापते हैं, लेकिन फिर भी वो कितनी बड़ी बात करते हैं. कबीर हमें ये भी समझाते हैं कि हाउ आर वी सेल्फिश, हम कितने सेल्फिश हैं. वो भी बात वो अपने कबीर वाणी के अंदर करते हैं. सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होय. मतलब कि ये बताते हैं कि हम भगवान को भी कब मानते हैं, भगवान को भी तब मानते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सुख के अंदर हम सब कुछ भूल जाते हैं. तो लिटरेचर हमें टोकता है, लिटरेचर हमें यहाँ पे ये सीख देता है कि हमें जीवन कैसे व्यतीत करना होता है. श्वेतर्क्षयदे ये जो वर्ड था उसका मीनिंग ये था कि शिव का मतलब कल्याणकारी और उससे इतर मतलब उससे अलग, अदर दैन शिव, अदर दैन ओमनिशियस थिंग, मतलब कि जो ओमनिशियस थिंग है, जो प्रेशियस है, उससे कुछ अलग होना, मतलब कि अमंगलकारी. जब अमंगलकारी हो जाते हैं, मतलब हमारे जीवन के अंदर जब यातनाएं आती है, पीड़ाएं आती है, दुख आते हैं, तो उस वक्त हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है वो हमें लिटरेचर सिखाता है. फिर है सद्य पर निवृत्त तय कांता समित तय उपदेश युजे. यस, ये पूरी लाइन का मतलब अगर एक ही वर्ड में समझना हो तो लिटरेचर टीचीस अस, लिटरेचर प्रीचीस अस, प्रीच करता है. प्रीच का मतलब होता है हमें उपदेश देता है. तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ लिटरेचर. सो आई होप दैट कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हैं. यस, जो हम in first and the second unit we are going to learn two kinds of
form of literature. The first one is short stories. Again in short stories we have 10 different short stories written by the same writer R.K. नारायण. ठीक है, तो वो जो 10 शॉर्ट स्टोरीज है, ये मतलब कि जो इनकी 10 शॉर्ट स्टोरीज है उनमें से वो कुछ ना कुछ हमें समझाना चाह रहे हैं. तो विल डिस्कस लेटर ऑन, जब वो स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा. सी हियर एट द कॉलेज लेवल वी आर नॉट हियर टू ट्रांसलेट द वर्ड लाइन टू लाइन. हम यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि लिटरेचर को मतलब कि कहानी है उसकी एक लाइन पढ़ ली, उसकी ट्रांसलेशन हिंदी गुजराती कर ली, समझ गया, दैट्स ऑल. ये लिटरेचर नहीं है. लेकिन लिटरेचर इज बियॉन्ड द ट्रांसलेशन. इट मीन्स दैट वी हैव सपोज टू डाइव डीप इनटू द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. जो वर्ड है उस वर्ड के बॉटम तक हमें जाना है, समझना है, एंड वी हैव सपोज टू पिक अप द पल्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो सारी बातें होती हैं वो लिटरेचर होता है. लिटरेचर पढ़ने से क्या होता है कि हमें दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है. तो लिटरेचर हमें कहाँ काम में आता है? आपको अगर होता है, शायद किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि हम तो बीबीए के स्टूडेंट, ये सब सर क्या ये कहानी वहाँ सब कहानियाँ बहानियाँ पढ़ा रहे हैं. सो सी वो कहाँ पे आपको काम आएगी? हाँ, यस, आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन when you will on search for your job, nobody will going to ask you कि आपको कौन सी आर के नारायण की कहानी आती है, आपको कवि कबीर के कौन से दोहे आते हैं, गुजराती राइटर की कौन सी पोएम आती है. nobody is going to ask you. बट यस, अगर आपने उसकी पढ़ाई कर रखी होगी तो ये लिटरेचर आपको वहाँ कहाँ काम में आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ. लिटरेचर teaches us ethics in business. Literature teaches us morality in life. Literature teaches us how to be an honest. Literature teaches us how to be a human being. Literature हमें बताता है कि faith, courage, inspiration, motivation कैसे लाना है, कैसे रखना है, how to deal with the people. So you know literature is what, लिटरेचर जो है वो पूरी दुनिया है जहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है. सो लिटरेचर जो देखने का नज़रिया होता है वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक कांच का आधा भरा हुआ पानी का गिलास दिखाऊं और स्टूडेंट को अगर पूछा जाए, अलग अलग व्यक्ति को, कि आपको क्या दिख रहा है, somebody will say sir I can see it is a glass. कोई बोल रहा है कि मुझे सर ये कांच का गिलास है ऐसा दिख रहा है. कोई बोलता है सर मुझे ग्लास के अंदर पानी दिख रहा है. कोई बोलेगा सर मुझे जो गिलास है वो आधा पानी का भरा हुआ दिख रहा है. कोई बोलेगा सर मुझे गिलास आधी खाली दिख रही है. कोई बोलेगा सर मुझे गिलास दिख रहा है जो कि कांच का है, उसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है और आधा खाली है. तो ये 5-6 आंसर जो हमें मिलते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन सारे के सारे जो लोग हैं उनके आंसर अलग अलग हैं. तो इसमें से झूठा कौन और सच्चा कौन? कोई झूठा नहीं है, सारे लोग सच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनके जो आंसर है वो अलग अलग है. क्यों अलग अलग है? क्योंकि उनका जो नज़रिया है, जो विज़न है देखने की, वो सबकी अलग अलग है. तो लिटरेचर क्या करता है कि लिटरेचर widens our vision to look at the object. Literature widens our vision to look at the situation and the circumstances. So this is what we have supposed to learn from unit number 1 and unit number 2. तो हमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से ये सब कुछ पढ़ना है, ये सब कुछ सीखना है. सो इन द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 1. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट, you can leave your question or query on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9925458134. However, we are in WhatsApp group also. So I hope that you might have understand the entire picture of your syllabus of paper General English. General English के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया कि लिटरेचर क्या है और लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए. आगे के लेक्चर से हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. Thank you very much. Have a nice day to all of you.